Good morning, everyone. I hope that you are safe and healthy and would have given your best in the last UT2 examination. Before UT, we have completed our three chapters, and today we are going to start with our new chapter, that is perimeter and area, that is chapter 11. So, in this chapter, we are going to study perimeter and area of various shapes. In your sixth standard, you have studied about two shapes, perimeter and area, that was rectangle and square. In this you are going to have area and perimeter of three more shapes, that is parallelogram, triangle and circle. So first exercise is totally based on your perimeter and area of your rectangle and square. So first, before starting this uh, exercise 11.1, let us understand what is the area and perimeter. So this is a closed figure. ये क्या आपका closed figure है? If I see this closed figure, जो इस क्लोज फिगर के जो ब्लैक से बाउंड्री है, जो बाउंड्री होती है दैट रिप्रेजेंट्स योर व्हाट, पेरीमीटर. जो क्लोज फिगर की जो बाउंड्री होती है वो आपकी क्या होती है बेटा, पेरीमीटर होती है. द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज फिगर रिप्रेजेंट्स व्हाट, पेरीमीटर. अब हम बात करते हैं एरिया की. एरिया क्या होता है, जो ये क्लोज फिगर ने, इस क्लोज फिगर ने जो रीजन एनक्लोज कर दिया है, ऑक्यूपाई कर दिया है, जिसको हम बोल सकते हैं बाद दिया हुआ है, ठीक है, ऑक्यूपाई कर देना, ठीक है वो. और वी कैन से जो इसने रीजन एनक्लोज कर दिया, अपने अंदर बात दी है, दैट रीजन इज योर एरिया. अगर हम इस क्लोज फिगर को देखते हैं, क्लोज फिगर में जो इंटीरियर वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ये रीजन क्या कहलाएगा, आपका एरिया कहलाएगा इस क्लोज फिगर का. तो अगर मैं बोलूँ एरिया क्या है, एरिया ये जो रीजन इसने एनक्लोज किया, ऑक्यूपाई किया, वो रीजन क्या कहलाता है, आपका एरिया कहलाता है, क्लोज फिगर. आई होप व्हाट इज एरिया एंड पेरीमीटर. Area is basically the region enclosed by any closed figure, and perimeter is the total length of the boundary. Boundary की जो length होती है वो क्या represent करती है, आपकी perimeter represent करती है. This was the general thing you should know before starting this perimeter and area. Perimeter is basically the boundary, the outer boundary of your closed figure, and the area is the interior region, or we can say the region occupied by that figure. If I say, मैंने वो ये प्लेन में फ्लैट सरफेस में मैंने डस्टर रखा, तो ये डस्टर ने कितना रीजन इस फ्लैट सरफेस, इस प्लेन सरफेस का ऑक्यूपाई किया, दैट इज योर व्हाट, एरिया. वो क्या है आपका एरिया. नाउ कमिंग टू द some formulas, recapitulation of the formula that we have discussed in your sixth class. That was two shapes we have studied, that is rectangle and square. So in the rectangle there is length and breadth, so the area of rectangle is length multiply breadth, which is denoted by L multiply B also. Now this L is your length and B is your breadth, and the perimeter is your 2 multiply L plus B, where L is your length and B is your breadth. So the perimeter of rectangle is 2 multiply L plus B, and the area is length multiply breadth. Now coming to the next shape, that is square. In the square all sides are equal, hence the square area is your side multiply side, which is in here the side is denoted by S also. So this is S multiply S. So the perimeter of square is 4 multiply side, or we can say 4 multiply S also. So these are the formula that we are going to use in our exercise 11.1. So let us start with the exercise 11.1, question number 1. Now this is the first question of your exercise 11.1, which says length and the breadth of rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. Find its area. Second, the cost of land if 1 meter square of land cost 10,000 rupees. Now in this question we have been given the length and the breadth of rectangular piece of land, that is 500 मीटर एंड 300 मीटर. हमें लेंथ और ब्रेथ दी हुई है उस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड की, उसका हमें निकालना है एरिया. उसके बाद उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, और रिलेशन दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कॉस्ट रुपीज 10,000. कीप इन माइंड इन योर 6th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड अबाउट द यूनिट ऑफ एरिया. एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, इवन इन द हेक्टेयर आर देयर. So when we have been given a cost relation in meter square and rupees, then we have to find out the area. Area के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, इस कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है कितना, 10,000. अगर यहाँ पे 1 मीटर दिया होता तो हमें क्या निकालना होता, पेरीमीटर. यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम एरिया से रिलेशन लिख कर हम इस लैंड की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, एंड व्हाट आर द थिंग्स विच आर गिवन टू यू. वी विल राइट डाउन दैट फर्स्ट, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. So in this question 1, we have been given the length of rectangular land, that is 500 meter, breadth of rectangular land, that is 300 meter. First part says we have to find out the area. So area of rectangular land will be equals to what, length multiply breadth. So here length is 500 and breadth is your 300. So 500 multiplied 300 gives you what, how much, 5 3s are 15. Here 4 zeros, 2 zeros from here, 2 zeros from here. So this will be
1,50,000 meter square is the area of this rectangular piece of land. Now we have to find, in the second part we have to find the cost. We have been given cost of, आपको दिया हुआ cost of 1 मीटर स्क्वायर लैंड, 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कॉस्ट दी हुई कितनी, रुपीज, हाउ मच, 10,000. दिस इज गिवन टू, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड इज गिवन टू हाउ मच, 10,000. सो द कॉस्ट ऑफ, हमारे पास टोटल कितना लैंड है, 1,50,000 मीटर स्क्वायर लैंड, दैट विल बी इक्वल टू, क्या करेंगे हम, 1,50,000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 मल्टीप्लाई करते हैं, 1,50,000 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी वुड बी गेटिंग 1 5 4 zeros from here, 4 zeros from here, 1 2 3 4 5 6 7 1 10 100,000 10,000 1 10 100,000 10,000 lakh 10 lakh crore 10 crore 100 crore. So we are having 150 crores rupees as a price of that what piece of land whose length is 500 meter and breadth is 300 meter. I hope this is clear to you all. Now we will move to the next question, that is question number 2, which is basically a very simple question. Now question number 2 says find the area of square park whose perimeter is 320 meter. आपको स्क्वायर पार्क दिया हुआ है जिसका पेरीमीटर कितना दिया, आपको 320 मीटर दिया. आपसे पूछ रहा है एरिया क्या होगा, एरिया आपको फाइंड आउट करना है. सिंस यू नो दैट द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज योर, स्क्वायर इज योर साइड मल्टीप्लाई साइड, बट आपको गिवन क्या है, पेरीमीटर गिवन है. हम उस पेरीमीटर से क्या करेंगे बेटा, वी विल फाइंड आउट द साइड ऑफ दैट स्क्वायर पार्क. स्क्वायर पार्क की क्या साइड को फाइंड आउट करेंगे, उस साइड को फाइंड आउट करने के बाद वी विल फाइंड आउट द एरिया. सो सिंस वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क होगा तो स्क्वायर शेप में होगा तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई साइड. 4 मल्टीप्लाई साइड की वैल्यू दी आपको कितना, 320. आपने लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करना सीखा था. जब भी आपके साथ वेरिएबल अननोन के साथ कोई मल्टीप्लाई में नंबर दिया होता है, उस अननोन को फाइंड आउट करना, तो वेरिएबल कहाँ चले जाता है, डिनोमिनेटर में. तो साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका, साइड विल बी इक्वल टू 320 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 4. सो दिस इज 320 डिवाइडेड बाई 4. सॉल्व करते हैं, 4 1 जा 4, 4 8 जा कितना होता है 32. सिंस इट वॉज 320 तो ये हो जाएगा 80. और आपका जो पेरीमीटर था वो मीटर में था, तो साइड भी किसमें आ जाएगी बेटा, आपकी मीटर में आ जाएगी. तो साइड इज कमिंग इक्वल टू 80 मीटर. आपकी साइड कितनी निकल कर आ गई, साइड इज योर 80 मीटर. हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट एरिया. एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, जो स्क्वायर पार्क का एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, साइड मल्टीप्लाई साइड. तो साइड हेयर इज व्हाट 80, सो दिस विल बी 80 मल्टीप्लाई 80. 8 8 जा 64, 1 0 इधर पे 1 0 तो 2 0 लग जाएंगे. सिंस इट वाज इन मीटर सो द आंसर विल बी इन द मीटर स्क्वायर, और वी कैन से स्क्वायर. इसका सेम है, मीटर स्क्वायर को या फिर स्क्वायर मीटर लिखो, बोथ आर सेम. ठीक है, बोथ आर द यूनिट ऑफ व्हाट, एरिया. ये क्या होती है, एरिया की यूनिट. 6400 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर पार्क हुज perimeter is what, 320 meter. I hope you understood this question number 2 also. Now we'll move to the third question of your exercise 11.1. Now this is the third question of your exercise 11.1, which says find the breadth of a rectangular plot of land if its area is 440 meter square and the length is 22 meter. Also find its perimeter. So इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ आपको गिवन है एंड एरिया इज गिवन टू यू. आपको करना है उसका ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, जैसे अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी थी यूजिंग इन द क्वेश्चन नंबर 2. एंड सेम थिंग यू आर गोइंग टू यूज, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. तो आई होप दैट यू कैन डू दिस क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें प्रोसेस बिल्कुल सेम है. यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है. लेंथ आपको 22 गिवन है, एरिया आपको दिया 440. यहाँ से आप ब्रेथ फाइंड आउट कर लोगे. उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया. एरिया कौन से, सॉरी, यू हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ आपको गिवन है, ब्रेथ आपने फाइंड आउट कर ली, तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द पेरीमीटर. नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर आते हैं, दिस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. इसमें आपको थोड़ी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं. दिस इज द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर शीट इज गिवन 100 सेंटीमीटर. पेरीमीटर गिवन है आपको रेक्टेंगुलर शीट का कितना, 100 सेंटीमीटर. और उसकी लेंथ आपको गिवन है कितनी, 35 सेंटीमीटर. आपको उस रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ आपको गिवन है 35 सेंटीमीटर. आपसे पूछा है ब्रेथ फाइंड आउट करो, उसके बाद एरिया फाइंड आउट करो. ये और सेकंड और थर्ड सिमिलर हैं, बट फोर्थ में आपको क्या गिवन है, यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है,
ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, उसके बाद उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर एक्सरसाइज 11.1. जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यू विल डू बाय योरसेल्फ एज अ होमवर्क फॉर टुडे. Now in this question number 4 we have been given the length of a rectangular sheet, that is 35 cm, and perimeter of rectangular sheet is given to 100 cm. आपसे पूछ रहा है ब्रेथ क्या होगी और एरिया को. तो पेरीमीटर और लेंथ का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, ब्रेथ फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके बाद ब्रेथ और लेंथ हमें पता चल गई तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया भी. तो वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज योर व्हाट 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, एंड दिस इज गिवन टू यू हाउ मच 100. इसकी वैल्यू आपको दी है 100 और आपको पता है लेंथ कितनी होती है, कितनी गिवन है 35. तो दिस इज 2 मल्टीप्लाई 35 प्लस b इज इक्वल टू कितना 100. दिस b इज योर व्हाट ब्रेथ. तो अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, ये 2 क्या होगा इस 35 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इस b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 मल्टीप्लाई 35 प्लस 2 मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू व्हाट 100. इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. 2 मल्टीप्लाई 35 इज योर 70 और ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 100. हमें क्या चाहिए, हमें b चाहिए. तो 70 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 100 माइनस 70 प्लस 70 था उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस 70. दिस विल बी 100 माइनस 70. सो 2b इज कमिंग इक्वल टू व्हाट 30. सो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, b कितना निकल कर आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका b निकल कर आ जाएगा कितना, ब्रेथ इज इक्वल टू व्हाट 30/2 विच इज इक्वल टू व्हाट 2 1 2 2 15. तो b दैट इज ब्रेथ आपकी कितनी निकल कर आ गई 15 सेंटीमीटर. लेंथ कितनी है आपकी 35 सेंटीमीटर. तो इसका यूज करके हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. लेंथ आपको गिवन है 35, ब्रेथ आपकी निकल गई 15. इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा that will be the area of rectangular sheet in centimeter square. So I hope you understood the question number 4 also. So question number 3 is the homework for today, and with this we finish up with the today's class. That's all for today. Have a good day. Thank you. Jai Hind.